ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਗੱਗਾ ਦਾ ਨਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ। ਮਾਤ ਦਰਦ ਹੈ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਚ ਰਹਿਣੀ। ਦਿਨ ਸਜਾਏ ਜੀ ਦੇਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਸਜਾਣੇ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈ। सेवा करके, श्रवण करके, सत्संगत करके, और सेवा के भगत कमाई लौट के मानस देही पड़ी। इस देही को सिमरन देव सो देही हरि सेव। महाराज कहते भजो गोबिंद भूल मत जाओ। देखो कितने भुल ना जाए, ये देही है नहीं मिली। महाराज कहते तू बड़ा हंकार ना कर। माणिक चंद कौर का जीवन दस रही है, तू पहला की सी, हुण तू की है ते अगे करना की होना। महाराज कहते बड़ा हंकार ना करें कर। पहला तो पता की सी, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गाज नील कुरंगा। गाज नाम है हाथी का, नील नाम है मछली का, कुरंगा नाम है हंस का। महाराज कहते पता नहीं कितने के जन्म हाथियां दे, मच्छियां दे, हिरना दे निभा के आते। कई जन्म सैल गिर करे, पता नहीं कितने के जन्म तक परमेश्वर ने सैल नाम पत्थर का, गिर नाम पहाड़ी का। महाराज कहते पता नहीं कितने के जन्म तक पहाड़ का पत्थर बना के दिया है। कई जन्म गर्भ हर खरिया, कई बार तेन माता जी गर्भ में जून ही नहीं मिली, उथे जून ही खराब हो गया, जन्म ही नहीं ले सके। कई जन्म गर्भ करे, कई जन्म हैमर रखे जोगे, घोड़े बने, बिरख बने। महाराज कहते मेल जगदीश मिलन की बरिया, ये तो वारी मिली है परमेश्वर को मिलने वाली। चिरम काल सजनी बड़े चिर पिछे वारी मिली है। महाराज कहते परमेश्वर की मन की ओर ला लिया। कितना चिर लाना? जबला में जरा रोग नहीं आया, जर कहते ने जगाल, जरा कहता ने बड़े पे। महाराज कहते जिन्ना चिर तक तू बुढ़ा नहीं ना होता, बुढ़ेपा भी साथ समझ एक रोग है। जिन्हें जिन्होंने बुढ़ेपा हटाया ना, उन्होंने बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज है। भगत भीखन जी कहते हैं बुढ़ेपे की निशानी तुहानूं दसदे हैं। नैनो नीर बह, अखां चों पानी वगदा रहिंदा। नैनो नीर बह तन कीना, जिहड़ा तन है वो खून बिल्कुल पानी बन जाता, ना दवाई लगती है ना खाना पीना लगता। भय केस को दवानी, ये जो केस है ये दुध वांगू चिट्टे हो जाते हैं। मरूदा कंठ शब्द नहीं उच्चरे, जो कंठ है ना जिद आवाज आती है, जो कभी मोटर चढ़ के चांगरा मारता से ना निकल बार। महाराज कहते और संग ने बैठे रेशा भर गया, आवाज नहीं आती।
ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਆਏ ਹੋ ਪੈਰ ਬਣਵਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਬਾਰੇ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਂਡ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਥੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕੁਜਾ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਕੰਬੇ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲੱਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲੱਗ ਕਾਲ ਦਰਸੀ ਨੇ ਕਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਦਰਸ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 21 ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਭਗਤੀ, 41 ਦਿਨ ਕਰਨੀ, ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨੀ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਬਣਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਾਹ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀ। ਜਬ ਲਗ ਤਾਲ ਦਰਸੀ ਨੇ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 32 ਦੰਦ ਕੀਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ, ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਬਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਕੰਬਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੋਰਲਾ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾਵਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰਾਣਾ। ਇਹ ਵੈਰੂ ਵੈਰੂ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਲੱਗ ਬਿਗਲ ਭਈ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਧ ਪਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵੈਰੂ ਵੈਰੂ ਜਪੀ ਚੱਲ। ਆਪਣਾ ਭਜਸ ਕਰ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾਮ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਭਜਣ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਆਵੈ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਰਾਂ। ਪਿਆਰੀ ਤੱਕ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਵਿਛਾਏ, ਮਾਰ ਅੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਬਦਤਾਈ, ਜਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨੂਰ ਬੁਲਾਏ। ਗਹਿਰੀ ਕਰ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਵਿਛਾਏ।
महाराज कहते जेड़े मकान के दूर रहना कभी एदी नहीं पक्की की नहीं कभी ये पता किया भी कदम कर भगत रविदास जी कहते जल की भीत ये पानी की कंध ये पवन का थंबा इनू हवा की ठंडी ठंडी ये खिलारिया करना रगत ऊंट का गारा रहने वाला की है हार्ट मास नाड़ी तो पिंजर पंखी बन सकता है जीव आत्मा चारी ये पंखी न्याय वर्त गए हमारा कहते जेड़े मकान में तू रह रहा है ये जीवी पक्की कर ले मकान बनाना होगी बड़िया होगी नहीं पड़ता हमारा कहते जो गल सुनाने एक मार कंडे ते कोट भाई शासन की मार्केट लिखी हुई है दिल्ली ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਤਿਰਨ ਧਰ ਮੁੰਡ ਬੁਲਾਏ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਨੇ ਕੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਰ ਦਾ पूरा जीवन मारा कहते पढ़ के देख लो तू 100 साल की जिंदगी से मन करता बंदा मारा कहते सारी दुनिया तो बड़ा मनुख होया मार कंडे ते को दिखाई मार कंडे तो केड़ा बड़ा जिन ठन धर मूंद बुलाए मारा कहते उन्हें कखा खाने का पूरा बच्चा पीता जो धुप आती सी वो सामने कर लेता जो मीह आता सी सिर ते ले लेता सारी जिंदगी कखा खाने में कट दी पर परमेश्वर की बंदगी नहीं चली मारा कहते तुमने छोटी जी जिंदगी किहड़े चक्कर में पा बैठा इनू सफल कर ले ताहरे नर कर्म करत हो सजाए झूठी मेरी दुर्योधन से भाई मारा कहते तू बड़ा मेरी मेरी ना करा कर आ भी मेरा और भी मेरा जिन्होंने मेरी मेरी की है ना ज्यादा उन्होंने नाम भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज कर दिता इन्होंने किन पर मारा कहते मेरी मेरी करते जन्म गए सारी जिंदगी मेरी मेरी करके दिखा देता मेरी मेरी पैरों करते दुर्योधन सिंह भाई 12 जोजन शतर चला था 12 जोजन एक जोजन में 4 को होंगे एक कोच 2 किलोमीटर होते 12 चौक 48 48 को 96 महाराज कहते 100 किलोमीटर में राह चल रहा दुर्योधन जरा बड़ा हंकार करते श्रीमद भगवत गीता उन्हें लिखे है कि 17 दिन कृष्ण महाराज जी दुर्योधन को समझाते रहे 17 दिन उन्होंने समझाया कि भाई ये तेरे चाचे ने बोलता कि तेरे अगे युग में सारा कुछ हार गए तू इंज कर इन्होंने एक एक पिंड दे दे बेचारे बजनीक परसे भले परसे ये अपना रोटी पानी नाल गुजारा करी जाएंगे 17 दिन समझाने के बावजूद
ट्रेन की गल करते मैं इन्हों 1 इंच जमीन नहीं लगी सिविल लड़के ने कितनी जमीन नहीं लगी हमारा कहते हंकार करना झगड़ा करना चाहना लड़ाई करनी चाहना जंग करनी चाहना चंगा फिर कर ला कहते उन्हों का नुकसान तो हम होना ही होना ते जिन्ना तेरा होना ना वो तेनों भी नहीं करना 12 गोजन शतर चला था मारा कहते 100 किलोमीटर चौड़ा राह चलता सी दे ही गिरज न खाए हंकारियां के देंगे तो गिल जाने नहीं कर ये शब्द शास्त्र की 2 तरह होंगे एक तो होता देही गिरज न खाई हंकारियां के देंगे तो गिल जाने खादा कई पार्टियां किस तरह पढ़ते देही गिरज ना खाई ये जो पाठ ना देही गिरज ना खाई जो दुर्योधन पता लग गया ना कि मेरे नाम जंग बनी कृष्ण महाराज ने कहता चंगा कर दिया वो भजा भजा गया अपनी मां को कहने लगा मां मैनू ये आशीर्वाद दे कि मैं मारा ना मां कह लगी मैं ये तेरी आशीर्वाद नहीं मार कहने लगा मां अपने धिया पुत्रों वास्ते मां सारा कुछ आशीर्वाद दे दी मां कह लगी छड़ने हैं वो भी किसी ने बोलते हाँ मैं इन्हों के आशीर्वाद जरूर दे सकती है कि तेरे शरीर से कोई तीर नहीं लगी उन्हें चलो यो आशीर्वाद दे देते साफ है कि तेरी मां पास वेखना की करी जाके मैं पढ़िया होना वो जी दुर्योधन की माता ना अखा से पट्टी बनी जो मां अपने को गया आशीर्वाद लिया मां कह लगी चंगा तू मेरे सामने के नागे सामने के लंगा जब सामने के लंगा लग गया ना तो माता ने अखा से पट्टी लानी सी मेरी आशीर्वाद देना मां उसके जाके जिन्ना शरीर उनका नंगा सी वो सारा पत्थर का बनता जिथे कश पाई सी ना कशहरा पाया वो शरीर उसका मांस का रहता वो जो जंग कर गया अर्जुन होने की मार वो बच्चे वो बच्चे भीम नूं पता लग गया कि तीर क्यों नहीं बजता वो गदा लैके मगर भजा जगाधरी के कोल एक तीर्थ है उसका नाम आया गोपाल मोचन उत्थे आके जाके दब गया जो दुर्योधन सी ना उत्थे आके दब गया जब पांडवां का भीम सैन मगर भजा ना गए उत्थे आके लग गया गोपाल मोचन की गुफा में उतों आके कढ़िया भीम ने उत्थे ਉਹਦੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣ ਵਚਨ ਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣ ਵਚਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਫਦੇ ਨਾ ਵੀ एक आंदा भी देही गर्ज नहीं खाई उन्होंने धार्मिक लौ रीत मुताबिक उन्होंने संस्कार भी हो सका हमारा कहते गिलजा नहीं करते तू कदा हंकार करते हमारा कहते नहीं तो करते
स्वयं की लंका होती, सर्व स्वयं की लंका होती, रावण से ढकाई। आज तक परमेश्वर ने कृष्ण को 5 गुण दिते, 5 कि दिते सी ते वो कला दुनिया ते होया रावण, ਉਹਨੂੰ 5 ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ 5 ਗੁਣ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਸੁੰਦਰ, ਰਾਵਣ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ, ਕੁਲੀਨ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਚਤਰ ਚਤਰਾਈ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਦੌਰੂ ਪਾਏ, डमरू को जाकर सीधा जग लेना वाले जाने का अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी, मुख तो एडा बड़ा ज्ञानी, 4 वेद 6 शास्त्र 27 श्रुतियां 18 पुराण उन्होंने जुबानी चेते, मुख ज्ञानी धनवंत इन्ना अमीर, परिवार पता कितना बड़ा है, 1 लाख का शास्त्री ग्रंथ पर क्या हो सकता नहीं हो सकता। राज का कुछ भला कौन होता, पूरी प्रोजेक्ट भगवान पालता, 1 लाख ऊंट वो प्रजा का फर्क कितने जाने नाल 1.25 लाख का, 1.25 लाख के नाल वो देशों की सेवा। आज की साइंस बहुत डींगा मार रही है, अभी आ कुछ कर लिया, अभी आ कुछ कर लिया। रावण के समय की साइंस गुरबाणी में दर्ज है। महाराज कहते चंद सूरज जाके तप तर सोई, चंद्रमा के सूरज के तो बंदा बन के कोई काम करना नहीं। आज की साइंस ने आप सूरज की शक्ति पे काबू कर ले, अपने कोठियां के सोलर सिस्टम में प्लेटा लगी जिन्ना बिजली बन गई है, अपनी रसोई का चलता महाराज कहते रावण के समय की साइंस तुहानू दसदे हैं, चंद सूरज जाके तप तर सोई, चंद्रमा नाल चलने वाले यंत्र नाल ओदी रसोई ठंडी हुंदी, जिवें आज अपने घर में फ्रिज पई ठंडा करती, उस समय की साइंस रावण की गल करते महाराज। महाराज कहते चंद्रमा नाल चलने वाले यंत्र नाल ओदी रसोई ठंडी हुंदी, सूरज नाल चलने वाले यंत्र नाल ओदी रसोई दा खाना पकदा। मैं संतर जाके कपड़े धोई, शास्त्र की जाके किहड़े कपड़े धो सकती नहीं धो सकती, उदों भी यही आगे से अज भी यही आगे। अग नाल चलने वाले यंत्र नाल रावण के कपड़े धोते जाते, चंद सूरज जाके तप तर सोई, मैं संतर जाके कपड़े धोई, तो अमीर इना लंका गढ़ सोने का पै। शास्त्र जी अपने को 2 तोले हो, 5 तोले हो, किसी को 10 तोले हो, किलो होगा 10 किलो होगा। जो दिल्ली दी चोणां आउंदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸ ਪੜਿਆ 26 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। रावण की गल करते हमारा कहते जेते रहता ही ना लंका गढ़ सुनने का पै, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣੇਗਾ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਦੇਗਾ,
जे ना लैके मूर्ख क्या गया ना दुनिया के अजे तक किसी को कि गुरु अर्जन समारोह कहते वो रावण को क्या गया क्यों 5 तरह के मूर्ख होते एक है पिता मूर्ख काफी है जिन्हें समाज में बोलना नहीं ना उन्हें गाना करना हमारा कहते को भी मूर्ख है पिता मूर्ख आखिरी है। एक लोगों को बड़ी आदत है किसी की गल कटनी जो मैं कहना वो सही है उन्होंने मारा कहते किसी ना मदा आप हंकारी शक्ति करे करते किसी की गल कटना वो भी एक अहंकार है वो भी एक मूर्ख है। सब तो बड़ा मूर्ख भला कौन है मारा कहते मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना जो बंदा कहता रब ही सब तो बड़ा मूर्ख हो जो परमेश्वर के नाम तो मुनकर है ना कहता परमेश्वर है नहीं मारा कहते सब तो बड़ा मूर्ख वो है ये लंका गल सुनने का है मूर्ख रावण क्या लगा ये पाठ भी दो तरह पढ़े जाते हैं एक तरह के साल समझाया जाता है कि मूर्ख रावण क्या लगा एक तरह पढ़ा जाता मूर्ख रावण क्या लगे मूर्ख ने विश्राम लाई उत्थे महाराज ने आपा मूर्ख क्या लगा वो कहते मना मूर्खा दस के आप मूर्ख भला क्यों क्योंकि रावण 4 वेद 6 शास्त्र 27 स्मृतियां उस जमाने चेते सी अजकल सिख तो जब साल मारने होंगे मूर्ख हो सीगा महाराज ने आपा मूर्ख क्या किया लंका गढ़ सुनने का भया मूर्ख रावण क्या ले गया हमारा कहते मना मूर्ख है वो की ले गया कि तू की ले जाना तू बात गल करता है हमारा कहते नहीं तो करता देख रहे दुर्वासा से कर दुर्वासा से उत्तर कृपा करी जन अपने नाम दियो हर गुण गाए दुर्वासा से उत्तर खगौरी नाम है मजाक का किसी मजाक ना करे क्योंकि यावना कही खाए मानक सब अमोल पता नहीं केड़े गड्ढे विचों कोई आवाज नहीं है तेरे नुकसान का कारण बनना महाराज कहते पहले तो राजा ने गल्लां सुनाई कौरवां दियां पांडवां दियां रावण दियां हुण तुहानूं कदे गरीबी की गल सुनाई दुर्वासा से कत ठगौरी दुर्वासा शासन की गरीबी हुए है वृंदावन के जंगलों में वृंद कहते हैं तुलसी ते वन कहते जंगल तुलसी के जंगलों में मथुरा में वो भक्ति करता है जो कृष्ण महाराज जी ना ये गुर्जर जाति करते दुर्वासा की भक्ति करी जा रहे हैं 4-5 जने इकट्ठे होकर मुंडे ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਰਤਨ ਬਾਟੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ वो भक्ति करी जा रहे हैं एक जन ने जाके छेड़िया दरबार साहब की कहने लगा हाँ जी दसो वो बच्चा कहने लगा कहता महाराज देखो ये लड़की के पेट में की पैदा हो
लड़का होगा कि लड़की होगी, मजाक करते थे। वो दरबार साहब की बेचारा वो कहता गंगे शरारत नहीं करनी, जाओ कुछ अपना करना। तो गड़ा जा करके फिर आ गया, आके फिर उन्हें छेड़िया, कह लगे महाराज ये तो दसो कि लड़की के पेट विचों लड़का पैदा हो गया कि लड़की पैदा हो? उन्हें गुस्सा आ गया, गुस्सा आया, उन्हें कह दिता ये विचों वो पैदा होगा जिन्हें तुहाडी कौल दा नाश करना। शास्त्री जी उन्होंने विचों कोई तो लड़ भिड़ के मर गए, कुछ बीमारी नाल मर गए, कहते दो जने बच गए। उन्होंने दोनों जन सोचा कि अपने नुकसान का कारण वो संत का वचन है। पंड विनाशी, जेर विनाशी, उत कुछ सेठ बिनादा। महाराज कहते आंडिया तो पैदा होने तुना नाश हो सकती हैं, जेर तो पैदा होने तुना नाश हो सकती हैं, उल्ली तो पैदा होने तुना नाश हो सकती हैं, पर एक साधु का वचन वो नहीं नाश हो सकता। उन्हें कहता कि होना ही होना है। उन्होंने सोचा कि संत ने कहा कि एक बाटी में वो पैदा होगा जिन्हें थोड़ी कुल का नाश करना। उन्होंने एक रेती ली, रेती मार मार के बाटी घसा दी। वो कहते आप ये कुछ पैदा हो नहीं देना। साथ संगत वो बाटी सारी घस गई, एक छोटा जहा लोहे का टुकड़ा बच गया जो हाथ च आया वो कसे ना, वो सुट के चले गए। परमेश्वर का करना, एक शिकारी आया, उस शिकारी ने लोहे का टुकड़ा चुक लिया, तीर दे के पिट कर उधर किशन महाराज जी वृंदावन के जंगलों में आराम फरमा रहे हैं, लंबे पै ने, गोडे ते पैर रखे, शाम का वक्त है। वो शिकारी ने सोचा भी हिरण की अख चमक रही, पर शास्त्र जी हिरण की अख नहीं सी, वो कृष्ण महाराज का पैर से हिरण पर चमक रहा। शिकारी ने दूरों निशाना बन्निया, तीर जाके बचा कृष्ण महाराज के चरणों में। कृष्ण महाराज जी तड़प तड़प के मौत। महाराज कहते दुर्वासा से करत गौरी याद वे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए। महाराज कहते तू कृपा कर सच्चे पातशाह मेरे से, मैनू अपने नाम का रख दे तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम दो हर गुण गाए। अमरो करता राम स्नेही, अमरो करता राम स्नेही, बिन सजाए बेनती है, अरदास है कि प्रभाव उस दुखी आत्मा दास देश करना प्रभाव बख्शिश कर, पिछले परिवार के की कोशिश कर प्रभाव भी और छे परिणाम से पाठ कर रामकली महला की जान भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया।
ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਸਦਾ ਰੋਹਨ ਨਾਮੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਤੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਪਾਇ ਜਗਤ